Hello guys, today we will start the next topic which is geometric mean. Geometric mean the definition क्या है? The nth root of the product of n item is known as geometric mean. देखो geometric mean ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? First ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ nth root ਸਮਝੀਏ ਕਿ nth root क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 1/2 ਸੇ x ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰ ਹੈ 1/2 ਸੋ 1/2 ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਰ 1/3। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ फोर्थ रूट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਰ 1/4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ nth रूट बोलना है मतलब ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/n। दैट इज nth रूट। nth रूट मतलब पावर 1/n। ठीक। the nth रूट of the product of n item। ਤੁਸੀਂ nth रूट ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ nth रूट ਲੈਣਾ ਹੈ? प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n आइटम्स है से x1 है x2 है x3 है अप टू सो ऑन xn है। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ xn n आइटम्स ने इन्हां आइटम्स ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ प्रोडक्ट मतलब ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ मल्टीप्लाई। ठीक। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ प्रोडक्ट ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ nth रूट which is 1/n पावर 1/n। so the nth root ਕਿਹਦਾ nth root? product of n item। n items ਦੇ product ਦਾ nth root ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? geometric mean ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ x1 x2 x3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ xn ਦੈਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਇਜ਼ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 इंटू x2 x3 अप टू सो ऑन xn दी होल पावर 1/n मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ nth रूट ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ मतलब क्वेश्चन सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ nth रूट ਲੈਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ nth रूट ਲੈਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। देयरफॉर ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੈ x1 इंटू x2 x3 अप टू सो ऑन xn दी होल पावर 1/n है। ठीक। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ nth रूट ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ रूट ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मतलब nth रूट ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ nth रूट मतलब ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ बोथ साइड log ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ log ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ log ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, both साइड ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ log। ਦੇਖੋ log ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ log m ਦੀ ਪਾਵਰ n। log is logarithmic function ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। log m ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ log ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ n log m मतलब अगर पावर रेज होवे तो पावर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ मतलब ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। log m ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ n log m। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ nth रूट ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? log ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ both साइड। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ log ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ m ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਸੋ log ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1/n ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/n इंटू log x1 x2 इंटू xn। ठीक। फिर ਅਸੀਂ log ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ log ਦੀਆਂ। log ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ICSE ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 9th 10th ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ logarithmic functions। log m plus n sorry log m into n m into n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ log m
प्लस log n, मतलब log मल्टीप्लाई च किद्दां अप्लाई करदे असी, अगर m इंटू n मल्टीप्लाई च है बाहर log पे तो log किद्दां अंदर जाएगा, log m मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस log n। सिमिलरली हुण देखो साडे कोल ਉਹ 2 ਲਈ है, इदां असी n ਲਈ भी इहनूं एक्सटेंड कर सकते हैं। 1/n देखो log हुण अंदर किद्दां जाएगा, log x1 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस अप टू सो ऑन की आ जाएगा log xn आ जाएगा। ठीक, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन की बन गया, log दूसरी साइड जाके बन जाता है एंटी log। ठीक है, log दूसरी साइड जाके बनता है एंटी log, इधर log सी इन्हों असी दूसरी साइड ले गए, ये बन गया एंटी log। ये सारी आप ऐड हो रहे ना log सारे, तो इन्हों असी लिख लिया समीशन log x, आ एन ऐदी रह गया, मतलब आ सारी टर्म नू असी किद्दां लिखिया समीशन log x डिवाइडेड बाय n, log उधर जाके एंटी log। सो साडा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया ज्योमेट्रिक मीन दा, एंटी log al इज एंटी log समीशन log x अपॉन n। ये है साडे कोल फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का, जेड़ा तुसी याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन दे जेड़े असी सम सॉल्व करने हो इस मैथड दे नाल ही सॉल्व करने, मतलब ये वाला फॉर्मूला तुसी याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन इज एंटी लॉग, केदा एंटी लॉग लेना, समीशन log x अपॉन n दा, मतलब तुहानू x ऑब्जर्वेशंस गिवन होणियां, उन्हां दा पहला असी log x निकालांगे, फिर log x वालियां दा असी की कर लांगे सम डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है ये तो इंडिविजुअल सीरीज ले कीता। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच क्या गिवन हुंदा, सानू फ्रीक्वेंसी भी गिवन हुंदी है एंड ऑब्जर्वेशंस भी गिवन। x1 ਲਈ फ्रीक्वेंसी f1, x2 ਲਈ फ्रीक्वेंसी f2 अप टू सो ऑन xn ਲਈ फ्रीक्वेंसी fn है। देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन की होएगा, ज्योमेट्रिक मीन की होएगा एंटी लॉग 1 बाय स्मॉल n की जगह ते साडे कोल आ जाएगा कैपिटल N इंटू समीशन log x से नाल की मल्टीप्लाई हो जाएगा f हो जाएगा। सो साडा फॉर्मूला इहदा बनेगा एंटी लॉग समीशन, इनू असीं इदां भी लिख सकते हैं एंटी लॉग समीशन f log x डिवाइडेड बाय कैपिटल N, इनू असीं इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फॉर कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूअसली भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇ 0 to 10, 10 to 20, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਟਡ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟਡ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਟਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਐਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੇਟਡ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ। बस ये चेंज ये आंदा है कि बस जिथे असी f यूज करते उत्थे की आ जाता है w, समीशन w log x अपॉन समीशन w, वेयर gmw की है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की हुंदा है, मतलब तुहानू दो सीरीज दित्तियां होणियां, दो ग्रुप्स दित्ते होणे आ, उन्हां दा तुसी कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। Let if G1 and G2 represent geometric mean of two groups of size N1 and N2, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो ग्रुप्स है, एक दा साइज है N1, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ने N1, एंड दूसरा ग्रुप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ने N2। फर्स्ट वालियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ geometric mean है G1 है, सेकंड वालियां ਦਾ geometric mean G2 है। देन कंबाइनिंग geometric mean की होएगा G12 is represent as G12 which is equals to anti-log, anti-log ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ N1 log G1 plus N2 log G2 divided by N1 plus N2। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ combined geometric mean फाइंड करन दा फॉर्मूला। ठीक है, हुण असीं 1 by 1 हर मैथड दे नाल दा क्वेश्चन करांगे, फिर तुहानू ज़्यादा क्लीयर होएगा। ठीक, फर्स्ट असीं सॉल्व करांगे इंडिविजुअल सीरीज दा क्वेश्चन कि इंडिविजुअल सीरीज नू असीं किद्दां सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, साडे कोल है फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस। कॉमोडिटी है व्हीट, राइस, पल्सिस, शुगर, साल्ट, आयल्स, ते तुहानू नाल प्राइस गिवन है। ठीक है, प्राइस गिवन है कि व्हीट दा प्राइस है 207, राइस है 198, एदी अप टू सन ऑयल्स दा है साडे कोल 196। तुसीं इन्हां एंट्रीज दा इन्हां ऑब्जर्वेशंस दा असीं की निकालना है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है।
सो फर्स्ट वी प्रिपेयर दिस टेबल। कॉमोडिटी है साडे कोल व्हीट, राइस, पल्सिस। प्राइस सानू हुण इहदे विच प्राइस ही गिवन है, सानू इहदे विच जिहड़ा डाटा गिवन है इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, असी प्राइस दा ही ज्योमैट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक, प्राइस नूं असी रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल एक्स नाल, वो सानू गिवन है। ठीक, हुण देखो इंडिविजुअल सीरीज ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦਾ। ਐਂਟੀਲੌਗ ਲੈਣਾ, ਐਂਟੀਲੌਗ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ? ਸਮਿਸ਼ਨ log x upon n ਦਾ, ਮਤਲਬ x ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? log x, ਉਹਦਾ ਸਮਿਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय n। ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ log x ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ log x ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? log x ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇटर मतलब कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउड है। ठीक है, जिस प्रोग्राम आंदा होवे, मतलब जिस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सॉल्व हुंदे होण, ਉਹ वाला नहीं लेना तुसी, नॉन प्रोग्रामेबल दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है। सो मेरे पास है तो नहीं सी कैलकुलेटर, मैं फोन ते ही डाउनलोड किया। मैं तुहानू सिखा दिन्नी इहनू यूज किद्दां करदे है कैलकुलेटर नू। देखो असी सानू एक्स गिवन है। ठीक, असी इत्थों बनाना है log x, मतलब फर्स्ट जे असी देखिए असी की बनाना है log, फर्स्ट है 207। सो log असी ले लेना है। log देखो ये सारे तुहानू गिवन है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, ln, ये है तुहाडा log, log वाला log। ठीक है, तुसी फर्स्ट log लिखना। ठीक, इत्थे अपनी एंट्री फिल करनी। log तुसी किहदा लेना है? 207 दा। सो इत्थे तुसी 207 फिल किया, विच इज इक्वल्स टू साडे कोल आ गया 2.3159। ठीक है, साडे कोल आ गया 2.3160। असी राउंड ऑफ करके लिख लिया 2.31। अगर साडे कोल ये वाली जिहड़ी वैल्यू है 5 तो ज्यादा हुंदी है तो असी एक प्लस कर दिन्ने अगे। सो राउंड ऑफ करके साडे कोल आ गया 2.3160। तुसी इनू लिख सकते 2.31597 भी लिख सकते अगर तुसी 5 डिजिट पॉइंट तो बाद लेने, बट तुसी पॉइंट तो बाद 4 डिजिट्स जरूर लेने हैं। ठीक, उस तो बाद नेक्स्ट असी log लेना 198 दा, फिर दोबारा log 198। ठीक, सो log 198 फिर सारे को कितना आ गया 2.2967। क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिगर्स आ रही हैं पॉइंट्स के बाद असीं इहनूं राउंड ऑफ करके 4 तक लिख लिया, 1 2 3 4। हुण देखो अगली जिहड़ी साडे कोल नंबर है 5 तो वड्डा है, सो इन राउंड ऑफ करके एक अगे प्लस कर दिता, इत्थे आ जाएगा 7। सो साडे कोल आ गया 2.2967। सिमिलरली असीं नेक्स्ट फाइंड करना है log, पहला log प्रेस करना है 156। सो साडे कोल कितना आ जाएगा 2.193। सो इसी तरह असी सारे log फाइंड आउट कर लेने। लास्ट से असी की लेना सबमिशन log x। सबमिशन log x मतलब जिन्नियां भी साडे को ऑब्जर्वेशन आईयां log x वालियां सारियां दा सम तुहानू करना आंदा है, सम आ जाएगा इत्थों। देयरफॉर ज्योमैट्रिक मीन दा फार्मूला अप्लाई किया। एंटीलॉग केदा एंटीलॉग लेना तुसी? सबमिशन log x अपॉन n, मतलब पहला इनू सॉल्व करना है। सबमिशन log x की वैल्यू है 13.2209। ठीक, डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। साडे कोल ऑब्जर्वेशन कितनियां ने 6, तुसी 6 ना की कर देना है डिवाइड। इनू 6 ना डिवाइड करके साडे कोल आ जाएगा 2.2035। ठीक है, फिर तुसी इहदा की लेना है एंटीलॉग। देखो log तो तुहानू लेना आ गया कि log असी लेने आ, सिंपल log प्रेस करके तुसी अपनी एंट्री फिल करो। ठीक, हुण एंटीलॉग किद्दां लेना है? एंटीलॉग है इहदी जिहड़ी उपर 10 दी पावर x है, log दे उपर जिहड़ा लिखिया होया है 10 दी पावर x, 10 दी पावर x, ये है तुहाडे कोल एंटीलॉग। इनू यूज किद्दां करना? निचले वाले फंक्शन तो एज इट इज प्रेस करके हो जाते हैं। जेकर तुसी उपर वाला फंक्शन लिखना होवे तो तुसी क्या दबोगे? शिफ्ट। ठीक, शिफ्ट प्रेस करके फिर log प्रेस करूंगे। सो साडे कोल उपर वाला फंक्शन 10 दी पावर x आ जाएगा। 10 दी पावर x इज एंटीलॉग। ठीक, सो तुसी एंटीलॉग केदा लेना है? असी एंटीलॉग लेना है 2.2035 दा। सो ये आ जाएगा 2.2035, सॉरी 2.2035। ये आ जाएगा साडे कोल 159.77। साडे कोल आ गया 159। हुण असी
साडे कोल ये आया सी ना 159.77, ठीक। असी की करना है, ये 5 तो ज्यादा है, ठीक। सो असी की किया, अगले वाले च एक शिफ्ट कर दिता, ये आ जाएगा 159.8। अगर तुसी ये भी लिख लेंदे हो ब्रैकेट च अप्रॉक्स लिख देंदे हो तां भी तुहाडा आंसर गलत नहीं है, सही है आंसर, ठीक। सो इस तरह असी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। नेक्स्ट है साडे कोल नेक्स्ट है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। हुण असी लै रहे हैं डिस्क्रीट लई, सानू एक्स गिवन है, एफ गिवन है। सो फर्स्ट असी निकालना, क्योंकि फॉर्मूला साडे कोल हुंदा है एफ इंटू लॉग एक्स, सो लॉग एक्स का निकालना ही पैना। एक्स वालियां दा लॉग निकालो, लॉग एक्स। पहला असी लॉग 10 का निकालिया, ठीक है। फर्स्ट असी निकालना है लॉग 10, फिर तो दोबारा मैं एक बारी दस दिनी है तुसी लॉग किद्दां निकालना है। लॉग फर्स्ट तुसी डायरैक्ट प्रेस करना है लॉग, लॉग तो बाद एंट्री है 10, लॉग 10 कितना आ जाएगा साडे कोल 1, साडे कोल 1 आ गया। मैं 0.00 अपने को लिख लिया ताकि मैनू ऐड करना ईजी हो जाए, ठीक है। सो तुसी इहनू 1 भी लिख सकते सी, बिकॉज पॉइंट तो बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं हुंदा, ठीक। मैं तां ही कीता कि मैनू जदों ऐड करने वेले प्रॉब्लम ना आए, ठीक। नैक्सट तुसी log 20 निकाल लेना, log 30, log 40 निकाल के फिर तुसी इन्हां दोनों कॉलम्स नू की कर देना है मल्टीप्लाई, f इंटू log x। 12 नू 1 ना मल्टीप्लाई करना, 15 नू करना, फिर तुसी की करना इन्हां इस वाले कॉलम दा सबमिशन ले लेना, सबमिशन f log x। वो आ गया 98.2139। ज्योमेट्रिक मीन दा फॉर्मूला लगाया एंटी लॉग सबमिशन f log x अपॉन कैपिटल N विच इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, इथे उसी वैल्यू फिल कर देती 98.2139 डिवाइडेड बाय, इथे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 70। सो हुण दोबारा मैं एंटी लॉग भी दस दिनी है। हुण असी एंटी लॉग किहदा निकालना है, एंटी लॉग निकालना है असी। एंटी लॉग निकालन दे लई असी क्या करना है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। लॉग दी जिहड़ा उपर लिखिया होया 10 दी पावर x, ये है तुहाडा एंटी लॉग। पहला शिफ्ट दबना, फिर तुसी लॉग दबना है, ठीक है। शिफ्ट तो बाद असी दबना है लॉग, ठीक। फिर तुसी अपनी एंट्री 1.4030 वो साडे कोल आ गया है 25.29, ठीक। सो साडे कोल आ गया 25.29, ठीक। सिंपल है, कैलकुलेटर तो लॉग निकालो, लॉग वालियां दा सम निकालो, लास्ट ते एंटी लॉग निकालो, ठीक। नैक्सट है साडे कोल एग्जाम्पल फॉर कंटीन्यूअस सीरीज। देखो ये मार्क्स मोर देन दिते हुए हैं, जे तो डायरैक्ट इंटरवल आवे 10 to 20, 20 to 30 वो तो तुसी ईजिली सॉल्व कर सकते हो कि उसकी मिड वैल्यू ले ली, फ्रीक्वेंसी ले ली। अगर इदा आ जाए मार्क्स मोर देन, मतलब तुहानू मोर देन दिते हुए हैं 70 तो मोर देन, मैं वैसे पहला भी ये समझाए हुए इस टाइप के सम, 62 अबव, 52 अबव, 42 अबव, 32 अबव, 22 अबव। नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 तो अबव, जिन्हां दे मार्क्स 70 तो अबव है वो है 7 स्टूडेंट, जिन्हां दे 60 तो अबव है वो है 18, जिन्हां दे 50 तो अबव है 40। सो इहदे विच सानू इंटरवल नहीं गिवन, अबव वाला केस गिवन है। सो इत्थों इंटरवल बनाउण लगे असी ले लिया 20 to 30, असी लोअर तो स्टार्ट किया 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to अबव बोल रहे। असी देख लिया कि साडा सारियां च डिफरेंस आ रहा 10-10 दा। सो असी अबव कितना ले लिया 80, 70 to 80 ते रुक गए। मिड वैल्यू असी इन्हां दी मिड वैल्यू निकाली x, ठीक। मिड वैल्यू मतलब तुहानू आंदी है मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी। मिड वैल्यू असी किद्दां फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट 20 to 30 दी अगर असी मिड वैल्यू फाइंड करनी होवे किद्दां करांगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 50/2 इज 25। सिमिलरली सारियां दी तुसी मिड वैल्यू निकाली 35 आ जाएगी, 45, 55, 65, 75। हुण देखो इच मोर देन दित्ती हुई 20 तो ज्यादा वालियां लई फ्रीक्वेंसी दित्ती हुई 70, मतलब 20 तो ज्यादा दे विच सारे ही आ जांदे 30, 40, 50, 60, 70 अबव सारे, मतलब वो स्टूडेंट जिन्हां दे मार्क्स 20 to अबव है, ठीक है। 20 तो अबव दी गल करदे आ, जे हुण 20 तो अबव दी गल कर रहे मतलब 20 तो अबव सारे स्टूडेंट इंक्लूड है, ठीक। फिर नैक्सट गल करदे आ 30 तो अबव, इहदा मतलब 30 तो अबव सारे स्टूडेंट इहदे विच ने। नैक्सट 40 to अबव, ये जिहड़ी फ्रीक्वेंसी गिवन है सानू सिंपल फ्रीक्वेंसी ने, किहड़ी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक।
सो असी लिख ली 20 तो 30 वाले की 70 63, सो असी ये सारी लिख ली। ठीक, फ्रीक्वेंसी इत्थों असी फ्रीक्वेंसी किद्दां निकालनी है, मैं वैसे पहला भी तुहानूं दस्सिया है कि इहदी फ्रीक्वेंसी हुण सानू तां 20 to 30 वाली चाहिदी है। ये तो है जिहड़ी सानू दित्ती हुई 20 तो ज़्यादा वाली दित्ती हुई है, बट सानू की चाहिदी है 20 to 30 वाली चाहिदी। असी करांगे 20 मोर वाले चो 30 मोर वाले की कर देंगे माइनस, ये पूरे वाले चो एने वाला कर देंगे माइनस, तो साडे कोल आ जाएगी 20 to 30 दे विचकार फ्रीक्वेंसी। सो असी सिंपल फ्रीक्वेंसी च कन्वर्ट कर लिया। उहदे लई की करांगे असी 70 चो 63 माइनस करके 7, 63 चो 40 माइनस 23, 40 चो 40 0, 40 चो 18 22। सिमिलरली असी माइनस करके लास्ट वाले दी तां फिर 70 to 80 वाले तक ही रह जाएंगे, 7 ही रह जाएगा। ठीक, फिर तुसी करना साडा उही फॉर्मूला log x लेना है, x वालियां आ वालियां वैल्यूज है, सो इन्हां दा log x ले लेना है, f इंटू log x करना है, सम कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है, तुहाडा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।